Good morning all of you. In last lecture, we discussed about free body diagram in engineering mechanics. In this lecture, I am going to discuss methods for the equilibrium of coplanar forces. Generally, there are two methods of studying the equilibrium of forces. First, analytical method and second, graphical method. Today, I am going to discuss analytical method for the equilibrium of coplanar forces. Now, the equilibrium of coplanar forces may be studied analytically by Lami's theorem, and this is asked in SBT examination 2017. So, first of all, what is Lami's theorem? So, Lami's theorem का स्टेटमेंट क्या है, इसको पहले हम देखते हैं. लैमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि तीन कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेज एक बॉडी पर कार्य करते हैं और बॉडी को संतुलन में रखते हैं, तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच कोण के साइन के समानुपाती होता है. दैट इज, इफ थ्री कोप्लेनर concurrent forces act on a body and keep the body in equilibrium, then each force is proportional to the sine of angle between the other two forces. So, first of all, what is coplanar concurrent forces? The system in which the forces lie in the same plane and are acting through the same point are called coplanar concurrent forces. That is, जिस सिस्टम में फोर्स एक ही प्लेन में रहते हैं और एक ही बिंदु से होकर कार्य करते हैं, उसे कोप्लेनर concurrent forces कहते हैं. In other words, we can say that if three coplanar forces acting at a point be in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two. This is a statement of Lami's theorem. Now, let us consider three coplanar forces F1, F2 and F3 acting on a body at point O, जैसा कि फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है. And let the opposite angles to three forces be alpha, beta and gamma as shown in figure. And the body is in equilibrium. So, according to Lami's theorem, F1 directly proportional to sine alpha. That is, अगर हम फोर्स F1 को लेते हैं तो F2 एंड F3 के बीच का एंगल अल्फा, दैट इज F1 जो प्रोपोर्शनल होगा वो साइन अल्फा के प्रोपोर्शनल होगा. सिमिलरली, अगर हम फोर्स F2 लेते हैं तो F1 एंड F3 के बीच का एंगल क्या है, बीटा, दैट इज F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा. एंड अगर हम फोर्स F3 कंसिडर करते हैं तो F1 एंड F2 के बीच का एंगल क्या है, गामा. सो F3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, साइन गामा के. बिकॉज अकॉर्डिंग टू Lami's theorem, each force is proportional to the sine of the angle between the other two. So, अगर यहाँ से हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं और उसको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वहां पे रिप्लेस करते हैं, तो हम देखते हैं क्या होता है. यहाँ से F1 इक्वल टू के साइन अल्फा एंड F2 इक्वल टू के साइन बीटा एंड सिमिलरली F3 इक्वल टू के साइन गामा. दैट इज, हम कह सकते हैं कि F1 डिवाइडेड साइन अल्फा इक्वल टू के. सिमिलरली F2 divided sin beta equal to K and also F3 divided sin gamma equal to K. That is, यहाँ से मेरा आ जाता है F1 divided sin alpha equal to
F2 divided sin beta equal to F3 divided sin gamma. So इस तरह से according to Lami's theorem, if three coplanar concurrent forces act on a body and keep the body in equilibrium, then each force is proportional to the sine of angle between the other two forces. Hence, mathematically, F1 divided sin alpha equal to F2 divided sin beta equal to F3 divided sin gamma. Now, let us start proof of the Lami's theorem. So, for this, let us consider the two forces F1 and F2 which are represented by two adjacent sides OA and OC of a parallelogram OABC as shown in figure. Now, we know that the resultant of the two forces F1 and F2 will be given by the diagonal OB both in magnitude and directions of the parallelogram OABC. Since according to three-force principle, if a body in equilibrium is acted upon by three forces, then the resultant of any two forces must be equal, opposite and collinear with the third force, that is F3. That is, यदि संतुलन में एक बॉडी पर, that is इक्विलिब्रियम में एक बॉडी पर तीन बलों द्वारा कार्य किया जाता है, तो किसी भी दो बलों का रिजल्टेंट, दैट इज यहाँ पे रिजल्टेंट किसे शो कर रहे हैं हम लोग, ओबी से शो कर रहे हैं, रिजल्टेंट ओबी तीसरा बल के साथ इक्वल, अपोजिट एंड मस्ट लाई इन लाइन होना चाहिए. दैट इज यहाँ पे मेरा ओबी जो होगा वो F3 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा और दोनों सेम लाइन पे होगा. हेंस थ्री फोर्सेज F1, F2 and F3 are in equilibrium. Therefore, the resultant of the two forces F1 and F2, that is OB, must be in line with OD and equal to F3 in magnitude but opposite in directions to F3. Now, from parallelogram OABC, that is AB equal to OC equal to F2 and BC equal to OA equal to F1. Now, in triangle OAB, angle AOB क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, बीटा. सो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा मेरा, 180 डिग्री. दैट्स वाई एंगल मेरा AOB क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस बीटा. दैट इज हम कह सकते हैं कि एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा. सिमिलरली एंगल OBA, ये मेरा अल्टरनेट एंगल हो जाएगा. चूंकि ये अल्फा है, सो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा, और ये अल्टरनेट एंगल के चलते क्या हो जाएगा, मेरा OBA क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा. दैट इज एंगल OBA कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा. सिंस मेरा जो एंगल COB, दैट इज मेरा एंगल COB इक्वल टू एंगल OBA, दैट इज OBA दोनों क्या होगा, बराबर होगा ड्यू टू अल्टरनेट एंगल. दैट मीन्स 180 माइनस अल्फा. नाउ तो एंगल OAB क्या होगा, हमको फाइंड आउट करना है एंगल OAB. हम जानते हैं कि इन ए ट्रायंगल थ्री एंगल्स का सम होता है, कितना होता है वो, 180 डिग्री होता है. दैट इज इन ट्रायंगल OAB एंगल AOB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल OAB, दैट इज
3 एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। दैट्स वाई एंगल अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें ओ ए बी, दैट इज ओ ए बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 180 डिग्री माइनस एंगल ए ओ बी माइनस एंगल ओ बी ए, एंड एंगल ए ओ बी मेरे पास कितना है 180 माइनस बीटा, दैट इज 180 डिग्री माइनस बीटा, एंड एंगल ओ बी ए कितना है 180 डिग्री माइनस अल्फा, दैट इज 180 डिग्री माइनस अल्फा। इसको हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है मेरा एंगल ओ ए बी, दैट इज कितना आता है 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री प्लस अल्फा, दैट मीन्स ये 180 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज कितना आता है 180 माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा, दैट इज कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री। सो इस तरह से मैंने एंगल ओ ए बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। नाउ सिंस F1, F2 एंड F3 तीनों फोर्स जो है एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई मेरा जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। सो वी कैन रिटर्न एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 360 डिग्री। दैट इज यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस गामा, और ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो क्या हो जाएगा एंगल ओ ए बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस गामा माइनस 180 डिग्री, दैट इज ये आ जाएगा मेरा 180 डिग्री माइनस गामा। नाउ by applying sine rule in triangle OAB, that is in triangle OAB by sine rule, that is अगर मैंने साइड्स OA लिया देन इसके सामने का एंगल क्या है 180 डिग्री माइनस अल्फा, that is OA divided sine angle OBA and AB divided साइन ए बी के सामने का एंगल क्या है 180 माइनस बीटा, दैट इज एंगल बी ओ ए, दैट इज एंगल बी ओ ए, एंड ओ बी डिवाइडेड ओ बी के सामने का एंगल कितना है मेरा एंगल ए, दैट इज साइन एंगल ओ ए बी, एंड मैंने फाइंड आउट किया है कि एंगल ओ बी ए कितना है मेरा 180 माइनस अल्फा, that is sine 180 minus alpha equal to AB divided sine BOA का मान कितना है एंगल BOA का मान 180 minus beta, and similarly OB divided sine OAB का मान मैंने फाइंड किया है कितना है 180 minus gamma। सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है OA मेरा क्या है, OA क्या है फोर्स मेरा F1, OA क्या हो जाएगा F1, एंड क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस अल्फा। सिमिलरली AB जो फोर्स है मेरा क्या है वो F2, दैट इज साइन 180 माइनस बीटा, एंड सिमिलरली OB फोर्स क्या है मेरा F3, दैट इज F3 डिवाइडेड साइन 180 माइनस गामा, एंड वी नो दैट साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, दैट्स वाई F1 डिवाइडेड साइन अल्फा इक्वल टू F2 डिवाइडेड साइन बीटा इक्वल टू F3 डिवाइडेड साइन गामा। सो इस तरह से मैंने लैमिस थ्योरम को प्रूव किया, दैट इज अकॉर्डिंग टू Lami's theorem, if three coplanar concurrent forces act on a body and keep the body in equilibrium, then each force is proportional to the sine of angle between the other two forces.
Now, validity of Lami's theorem. For the validity of Lami's theorem to hold good, the forces keep the body in equilibrium. Now, the three forces acting on the body are non-parallel, and third is the forces are concurrent, that is act at a point on the body, and the forces are either directed towards or away from the point of concurrence. That is, इस फिगर से आप देख सकते हैं, the forces are either directed towards or away from the point of concurrence, and the angle between any two forces is less than 180 degree. So ये सारे पॉइंट है जो लैमिस थ्योरम को वैलिड होने के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं. नाउ लिमिटेशंस ऑफ लैमिस थ्योरम, दैट इज कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ लैमिस थ्योरम क्या है. फर्स्ट है, इट इज अप्लीकेबल टू ओनली कनकरेंट फोर्सेज. यह केवल कनकरेंट फोर्सेज के लिए ही अप्लीकेबल है. एंड सेकेंड इज, only three forces are allowed in Lami's theorem. That is, if we have more than three or less than three forces, then Lami's theorem cannot be applied. Hence, we should have concurrent and three forces for Lami's theorem, and also apply for only non-collinear forces. सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आज के लेक्चर में मेथड्स फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज बाय एनालिटिकल मेथड, दैट इज बाय लैमिस थ्योरम, को स्टेटमेंट के साथ प्रूव किया. सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस वेरियस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लैमिस थ्योरम्स. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो. सो थैंक यू so much for watching this video. Thank you.